Good morning, students. Welcome to e-learning class. Today we are going to discuss some problems of exercise 10D as well as we are going to start exercise 10C, unity method. So see, question number 5, 4. Question number, part 4 of question number 5. See, it says we have to determine the ratio in the form of proportion. 2 kg is to 80 kg as and 25 grams is to 625 kg. Okay, we have to determine if the following ratio are in proportion. The ratios form a proportion. We have to check whether this ratio form a proportion or not. So how we will check? First of all, convert everything in kg. Okay, everything in kg. So here 2 kg is to 80 kg and 25 here is ग्राम. आप ग्राम को कैसे किलो में कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 1000. 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये किलो हो जाता है. ओके, इज टू 625 kg. नाउ अगर ये प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शन, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आना चाहिए. तो एक्सट्रीम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. एक्सट्रीम ये दोनों टर्म्स हैं. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, this is third term and this is fourth term. So first and fourth term are the extremes. So इनको multiply करो 2 into 625. This is the product of extremes. Product of extremes equal. ठीक है? And now product of means. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा? फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म. तो ये दोनों 2 into 625. 2 into 625 कितना आएगा? 2 5 are 10, 2 2 are 415, 2 6 are 12. ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ रहा है. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन चेक करेंगे. 80 इंटू ये दोनों है सेकंड इंटू थर्ड, 25 डिवाइडेड बाय 1000. ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम निकालने से पहले सभी को हम सेम यूनिट में चेंज कर दें. यहाँ सबको हम क्या कर दें? किलो में चेंज कर दें. ग्राम को किलो में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड बाय 1000 करते हैं. और किलो को ग्राम में कैसे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं. नाउ यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. 25 4 टाइम्स और 4 2 जा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है. तो क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो रहा है? नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं करेगा. ओके, यहाँ पे लिखोगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए दिस विल नॉट फॉर्म प्रोपोर्शन. Now see question number 7. In question number 7, first, third and fourth term are the first term. So in proportion we have first term is to second term as, okay, as third term is to fourth term. Here these are term. So this is the format. So here first term, third term and fourth term is given. Second term is not given. So let the second term be x. हम लोगों ने क्या मान लिया? सेकेंड टर्म को x. तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म यानी कि 12 is to x as 8 is to
4, 8:14. ओके, तो अब ये कह रहा है ये चारों प्रोपोर्शन में, तो हमें x का सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब बताओ एक्सट्रीम्स क्या है? 12 into 14, ठीक है। और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स क्या है? ये दोनों टर्म, यानी कि x इंटू 8 शुड बी इक्वल टू, और एक्सट्रीम्स क्या है? ये दोनों टर्म 12 into 14. Now this implies that x will be equal to 12 into 8, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 8. नाउ ये कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एंड 2 से अगेन 7 टाइम्स कट जाएगा, 2 7 जा 14, so 7 3 जा 21. So what will be our second term? Second term will be 21. In this way you will solve. Now see question number 9. See question number 9. In question number 9, four numbers 9, x and 49. These four numbers are in proportion. They are saying these four numbers are in proportion. It means product of mean should be equal to product of extremes. So what is product of mean? These are mean and these are extremes. X into x will be equal to 9 into 49. So what does it mean? It means x square is equal 9 into 49. I can write 9 as 3 square and 49 as 7 square. Okay, 7 7 is 49. So what does it mean? X square is equal to, I can write 3 into 7 whole square. Okay, 3 square into 7 square means 3 into 7 whole square. It means x square is equal 21 whole square. Okay, so if the power is same, here power is same, so base will also be same. If the power is same, then base is also same. So therefore this implies x will be equal to 21. Okay, in this way you will solve it when the two terms are same. Now see question number 10. In question number 10 they are saying an electric pole. ये electric pole है. This is an electric pole and this is the shadow. Okay, see question number 10. This is the electric pole and this is the shadow. Okay, and this is a tree and this is the shadow of the tree. Okay, so ये इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। इसका शैडो 20 मीटर, किसी समय पे इसका शैडो कितना बनता है? 20 मीटर का बनता है, ठीक है। 20 मीटर का, किसी टाइम पे कितना मीटर का शैडो बनता है? 20 मीटर का, ठीक है। और एक ट्री जो है जिसका हाइट है 6 मीटर, जिसका हाइट है 6 मीटर, वो करता है
शैडो उसी टाइम पे 8 मीटर का कास्ट 8 मीटर का शैडो कास्ट करता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये पोल का हाइट क्या होगा, तो सबसे पहले पोल का हाइट, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एक्स, हम लोगों ने एक्स मान लिया। तो पोल का हाइट इज टू ट्री का हाइट इक्वल पोल का लेंथ इज इक्वल पोल का शैडो का लेंथ इज इक्वल टू ट्री का शैडो का लेंथ। ठीक है, तो ये इस प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, पोल का हाइट, हाइट ऑफ द पोल इज टू, ओके, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल इज टू हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल। तो लेंथ क्या है 20। ठीक है, तो पोल का लेंथ और इज टू पोल का शैडो का लेंथ इक्वल्स, ये होगा इक्वल्स, ओके, एज ट्री का हाइट, ठीक है, पोल का हाइट डिवाइडेड बाय पोल का शैडो का लेंथ इक्वल ट्री का हाइट कितना है 6 इज टू ट्री का क्या होगा, ट्री का शैडो का लेंथ कितना है 8, ये दे रखा है। ठीक है, ये इस तरीके से हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे, पोल का हाइट डिवाइडेड बाय पोल का शैडो का लेंथ इक्वल ट्री का हाइट डिवाइडेड बाय ट्री का शैडो का लेंथ। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। ये ऐसे कर सकते हो x/20, ठीक है, x पोल का हाइट डिवाइडेड बाय पोल का शैडो का लेंथ x/20 इक्वल ट्री का शैडो का हाइट कितना है 6 डिवाइडेड बाय ट्री का शैडो का लेंथ इक्वल 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। और ये प्रोपोर्शन में तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये दोनों एक्सट्रीम हो गए, ये दोनों मीन हो गए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, यानी x into 8 will be equal to 20 into 6. Okay, so this implies x will be equal to 20 into 6 divided by 8. So 4 2s are 8, 4 5s are 20, and 2 3s are. So therefore, what is the height of the pole? Will be 5 3s are 15 meters. Okay, तो इसका हाइट कितना होगा, x will be equal to 15 meter. Okay, now we are going to start unitary method. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसे समझेंगे हम लोग। ओके, द मेथड इन विच फर्स्ट we find the value of one unit and the value of the required number of unit, then the value of the required number of unit is known as unitary method. ठीक है, तो ये वैसा मेथड है कि अगर एक, ठीक है, पहले हम, ये वैसा मेथड है पहले हम जिसमें एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट का, जिस मेथड से पहले हम, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, उसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक केले का दाम दिया हुआ है, 1 बनाना का प्राइस दिया हुआ है 10 रुपीज। ठीक है, मान लो, तो 10 बनानास का प्राइस क्या होगा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 बनाना, ये पूछा गया। तो जिस मेथड से एक यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है, बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का प्राइस, तो एक का यदि प्राइस दिया हुआ, जिस मेथड से एक यूनिट का प्राइस हम पहले निकालते हैं और उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट का प्राइस निकालते हैं, रिक्वायर्ड का वैल्यू निकालते हैं, उसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब इसका सीधा सा है कि इसका दो मेथड है, इसका रूल्स क्या है, रूल्स ये है, पहला रूल है टू गेट लेस वी
divide, and to get more we multiply। ठीक है, ये दो रूल याद रखना है कि अगर हमें कम चाहिए, क्वांटिटी कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और अगर हमें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ज्यादा चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे हम यूनिटरी मेथड के से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹70, what is the cost of the cost of 39 oranges? Okay, if 15 oranges cost ₹70, then what is the cost of 39 oranges? It means हमें 15 ऑरेंजेस का कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमें 39 ऑरेंजेस का कॉस्ट निकालना है। तो देखो, सिंस यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 15 ऑरेंजेस, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इक्वल कितना है, ₹70। देयरफॉर ये बताओ एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा, तो हमें कम चाहिए। यहाँ 15 ऑरेंज का कॉस्ट दिया हुआ है, अब हमें एक यानी लेस, तो हम क्या बताए थे, जब हमें कम चाहिए होता है, लेसर चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 70/15 हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऑरेंज का कॉस्ट है, तो हमें कम चाहिए, 15 ऑरेंज था, अभी एक ऑरेंज का दाम चाहिए, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि कम जब चाहिए होता है तो डिवाइड करते हैं ना। अब हमें पूछा क्या गया, 39 ऑरेंज का कॉस्ट, तो 39, अब एक का कॉस्ट हमको पता है, हमको 39 का चाहिए, यानी ज्यादा चाहिए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 70/15 इक्वल टू रुपीज, ये हो जाएगा इंटू 39। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको काटो, 3 5 50, 3 को 13, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम्स इक्वल्स रुपीज, 14 इंटू करोगे 13, तो ये ₹182 आ जाएगा। So this is the cost of 39, this is the required cost of 39 oranges। ठीक है, इस तरीके से यूनिटरी मेथड से हम बनाते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो योर टुडेज होमवर्क विल बी सॉल्व एक्सरसाइज 11C 1 to 10। ठीक है, 11C homework 1 to 10, okay, and your classwork will be solve exercise 11C 1 to 5। Okay students, thanks for watching the video।